Afternoon, sir. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. Good How are you, Good sir? afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so we'll be doing your MARPOL and X4, that is your sewage discharge regulations. In sewage, you have various bacterias. I was just reading one of those TV news was coming in Ghaziabad. 300 people have been affected in that Amrapali condominium, high-rise buildings. So the report coming in India TV right now was that the coronavirus is spreading through the sewage line. As per the report of Hong Kong, a person in second floor was affecting a person on 12th floor because of sewage. So that sewage line was transmitting the coronavirus. Yes. So similarly on sewage of your ship, you'll have various viruses, various bacteria, E. coli and all. And earlier everyone was dumping into the sea the sewage, and that was affecting the shoreline, that was affecting the trade, the suppose the tourists, the beaches, the toilet was coming there, affecting people, transmitting diseases. So the control was required on that. That's why MARPOL NX4 came up. That how to control your sewage discharge, which is affecting your coastal trade, the coastal states, and the beaches and the shores. So here they had come up with this policy that within 3 nautical miles, you can discharge sewage only through your approved sewage treatment plant. And between 3 to 12 nautical miles, you can discharge through an approved communicator and disinfecting system, or you can discharge by STP, but STP you can do within 3. So STP you can do from 0 to 12 miles. But from 3 to 12 nautical miles, if you don't have STP or sewage treatment plant, then you can discharge in water through your approved communicator, that is, which crushes the toilet, and disinfectant, which kills the bacteria in the toilet. And beyond 12 nautical miles, you can dump the sewage into the sea, but not suddenly or not together. You have to discharge at certain rate as per the certificate which you have. So MARPOL NX4 came into force on 27 September 2003. That controls your introduces your requirements how to control pollution of sea by sewage. Now, there was reports of sewage dumping by aircraft also, because aircraft also, you have toilet, and one of the houses near the airport in Delhi, they had filed a PIL in the High Court that some of the aircraft were dumping toilet over his house, and he had claimed damages of 1 lakh. So that was admissible in that court, and he won the case, and the company airlines had to pay 1 lakh because they were dumping sewage before entering the airport, because they had to pay for collection of sewage, so they were dumping on the houses. So sewage is supposed to be controlled. You can't dump it anywhere you want. When you feel very bad when some bird drops sewage on your head. So if your full lump of the sewage or aircraft is coming in your house, you know how it feels. So similarly, sewage into the sea is going to destroy your beaches, the houses next to the port and all. That the sewage will keep floating there. So the sewage control was done by NX4. So discharge of ship sewage is prohibited except when the vessel is equipped with sewage treatment plant, or if from a holding tank
You can discharge at a distance of more than 12 nautical miles at certain speed. You can't discharge entirely. Now, what is sewage? So sewage is your drainage and the waste from the toilets and urinals, that is sewage. Sewage is also drainage from your medical premises, that is your dispensary, sick bay, or the wash basin there, or the wash tubs in the hospital, and the scuppers located in the hospital, all will be considered sewage. Number 3, if you have an animal carrier, so all your discharges of living animals will be considered as, whether it's toilet or urine, all will be considered as sewage. And if other water is mixed with sewage, it will be also defined as sewage. So these are the 4 points of what is sewage is. Now, what is a holding tank? So holding tank is a tank where you collect your sewage. So the sewage is not going directly to sea. Going to toilet, it is going to the holding tank. There you can dump the sewage when you're more than 12 nautical miles. The tank where you collect your sewage. So the sewage is not going directly to sea. Going to toilet, it is going to the holding tank. There you can dump the sewage when you're more than 12 nautical miles off from shore. So what are the provisions of vessels engaged in international voyages? 1. This Annex 4 is applicable for new ships of 400 gross tonnage and above. New ships of less than 400 gross tonnage and above, if they have got more than 15 persons certified to carry, then it will be applicable. Because the more the number of persons, the more the sewage. Existing ships of 400 gross tonnage and above, 5 years of the date of entry into force of this annex, that was 2008, it would have entered. Existing ships of less than 400 gross tonnage, certified to carry more than 15 persons, 5 years of the date of entry into force of this annex, that is 2003 plus 5 is 2008. Now, certain exceptions are there for all your annexes. So here the first exception is that discharge of sewage from ship necessary if you have to secure the safety of ship or those on board, or when you're saving life at sea, then you can discharge sewage, but then you have to justify. The discharge of sewage resulting from any collision or damage to ship, provided you have taken all precautions to prevent it before the damage or before the collision, and you have tried to minimize or prevent the discharge of sewage into sea, then it's an exception. Now, what is the discharge criteria of sewage into sea? So, discharge of sewage into sea is prohibited within 12 nautical miles, except when it is discharged through commutator or disinfector. That means you have to crush it and disinfect it by chlorine or some tablets and all. And that system should be approved by the flag state. And the distance should be more than 3 nautical miles from nearest land. And if it is not comminuted or disinfected but in a holding tank, then it should be a distance of more than 12 nautical miles from nearest land. So you have to store that in the holding tank. And when you store it in the holding tank, it should not be discharged instantaneously. So it should not be just opened up and discharged. You have to discharge it at a moderate rate. En route, speed of the ship should not be less than 4 knots. Rate of discharge shall be approved by the flag state as per IMO. So here, I'll just repeat all. Within 3 nautical miles, you can discharge via the 0 to 3 nautical miles. You can discharge via the approved sewage treatment plant, which is as per your certificate.
From 3 to 12, you can discharge via a system which is comminuted and disinfected. More than 12 nautical miles, you can discharge from your holding tank, but you can't discharge together or suddenly. You have to discharge at a moderate rate as per your certificate. Your speed should be not less than 4 knots. You have to be en route, and the rate of discharge of the sewage from holding tank should be approved by the administration. So all these points you have to write in the discharge criteria. सब points आपको लिखने पड़ेंगे. मिस करोगे तो नंबर कटेंगे. अब इसमें कौन सा सर्टिफिकेट आता है? इंटरनेशनल सीवेज पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट. ये आपका सर्टिफिकेट आता है, उसी में आपके टेस्ट रिजल्ट्स लिखे होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के. So the ship has an operation and approved sewage treatment plant which is certified by Flag State, and the results of the sewage treatment plant are written in the International Sewage Pollution Prevention Certificate. Plus, one more point in your discharge criteria. Effluent means discharge. I'll just write here effluent discharge so that you understand what is effluent. So your discharge should not produce visible floating solid, so that you should not have the toilets floating around in the water, nor that toilet should cause any discoloration of surrounding water. Not that the surrounding water becomes yellow or black. That is not allowed. Because when you pump discharge from the sewage treatment plant, then the water will be as like normal water. So it should not discolor the surrounding water, neither it should produce visible floating solids. Now we come to the certificate, which is International Sewage Pollution Prevention Certificate. Basis the certificate, it should be in English, French or Spanish. If it is in any other language, it should be as per the issuing country, official language. And this International Sewage Pollution Prevention Certificate will be valid for 5 years. So the validity of the certificate is 5 years. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ कोई डाउट है तो पूछो, फिर सीवेज सिस्टम्स पे आएंगे. नो सर. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. यस सर, क्लियर. ओके. आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे आएंगे क्योंकि इसके डायग्राम्स आते हैं आपके एग्जाम में, उसको समझाऊंगा. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम द फ्लैग स्टेट, और इसमें जो टेस्ट मेथड्स हैं, they should be mentioned in your International Sewage Pollution Prevention Certificate. Similarly, आपका comminuting and disinfecting sewage system जो है, it should be approved by Flag State, and it should be as per Flag State's satisfaction. So when it is less than 3 nautical miles, you can't use it. You can use only STP. Plus इसमें एक holding tank होना चाहिए, जिसमें गेज होना चाहिए, सो दैट आप उसमें देख सको कि कितना लेवल है. सो होल्डिंग टैंक जो है, उसकी कैपेसिटी होगी एज पर फ्लैग स्टेट कि कितने लोग आपके हैं जहाज पे, उसके बेसिस पे होल्डिंग टैंक कितना बड़ा होगा. सो इट शुड बी रिगार्डिंग ऑफ व्हाट ऑपरेशन ऑफ शिप, कितना लंबा इसका वॉयज है, क्या ट्रेड है, कितने पर्सन ऑन बोर्ड हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बेस पे होल्डिंग टैंक बनाया जाएगा. And it should have means of indicating visually the amount of contents. अब आपका एक स्टैंडर्ड डिस्चार्ज कनेक्शन होता है हर एक चीज के लिए. इंटरनेशनल शोर कनेक्शन जो होता है, ब्रास का पोर्ट स्टारबोर्ड में रखा होता है, तो ये बेसिकली आपके कपलिंग साइज के लिए होता है. तो वो इंटरनेशनल शोर कनेक्शन आपके उसके लिए भी हो सकता है. इट कैन बी फॉर योर इमरजेंसी फायर पंप. अगर चालू कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और फायर हो गई, सो यू कैन टेक वाटर फ्रॉम अशोर, फ्रॉम इंटरनेशनल शोर कनेक्शन. Similarly, you will have international shore connection for reception facilities. So this will have the coupling जो internationally सही है for all the countries.
चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो वहां लग जाएगी. So it enables pipes of reception facility to be connected for discharge of sewage. कई बार आपका क्या होता है, डेडिकेटेड ट्रेड होती है, पैसेंजर फेरी होती है जिसमें टाइम नहीं है, बोर्ड लगाने ले आधा एक घंटा लग जाता है. So they can accept quick discharge couplings, quick connection couplings for these ferries. Because ferries में ज़्यादा टाइम नहीं होता, आधा एक घंटा होता है, उसके बाद निकल जाती है. तो उसको सीवेज देना होता है तो क्विक कनेक्शन कपलिंग से लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डिस्चार्ज कनेक्शन. अब आपका स्पेशल एरिया एक ही है, बाल्टिक सी एरिया. अब ये बाल्टिक सी एरिया कहाँ कहाँ आपको दिखा था पहले, 4 एनेक्स किए हैं, कहाँ कहाँ था वो याद है? बाल्टिक सी एरिया कहाँ कहाँ था? एनेक्स 1 में भी था, PSSS में भी था, पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया में भी बाल्टिक एरिया था, उसमें भी बाल्टिक सी एरिया था. और एनेक्स 4 में भी बाल्टिक सी एरिया है, एनेक्स 5 में भी बाल्टिक सी एरिया आएगा, और एनेक्स 6 में भी बाल्टिक सी एरिया आएगा, वो भी आएगा. सिर्फ एनेक्स 3 में नहीं था और एनेक्स 2 में नहीं था. एनेक्स 3 में वैसे कुछ नहीं है. एनेक्स 2 में क्या है, कौन सा एरिया एनेक्स 2 में बताओ? एनेक्स 2 का कौन सा एरिया है? एक एरिया है, अंटार्कटिका. बताओ, अभी तो कराना है. सर, अंटार्कटिक रीजन. याद नहीं है? अंटार्कटिक रीजन. अंटार्कटिक रीजन सर. अंटार्कटिक रीजन, Antarctic 60 डिग्री साउथ से, नॉट आर्टिक बट अंटार्कटिक रीजन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे. दैट इज फॉर एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 5, इसके लिए, ठीक है. लेकिन वो एनेक्स 4 के लिए नहीं है. क्यों नहीं है ये पता नहीं. 4 के लिए उन्होंने डाला ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी कौन जहाज वाले वहां जाके टॉयलेट करेंगे, कमर्शियल शिपिंग तो जाती ही नहीं वहाँ. वो एक्सप्लोरेशन वाले जाएंगे, थोड़ा बहुत टॉयलेट कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं. लेकिन बाल्टिक सी एरिया में बहुत ट्रेड होता है, तो उन्होंने वहां अनट्रीटेड सीवेज को बैन कर दिया. ओनली एसटीपी चला सकते हो. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आप कहीं भी डिस्चार्ज कर सकते हो, चाहे वो बाल्टिक सी एरिया वहां भी कर सकते हो, लेकिन कम्युनिटी डिसइंफेक्टेंट को यूज नहीं कर सकते. ओनली आप अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ भी यूज कर सकते हो. इनफैक्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलता है वो पानी पी सकते हैं. इट इज सो क्लीन. नाउ रिसेप्शन फैसिलिटीज क्या हैं कि मैं इसका जरा जिस्ट बताता हूँ, ये पूरा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. जिस्ट ये है कि रिसेप्शन फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पोर्ट्स में, और अगर पोर्ट्स में नहीं है तो उनको बताना है कि भाई पोर्ट में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वो अरेंजमेंट करेंगे. क्योंकि अगर आप रिसेप्शन फैसिलिटी के लिए डिले करोगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको डिले नहीं करनी चाहिए प्रोवाइड करने की. और अगर उसमें है नहीं या इनएडिक्वेट है तो उनको बताना चाहिए, सो दैट वो पब्लिश कर दें कि भाई आप अपना अरेंजमेंट करो, बार्ज बुलाओ, कुछ बुलाओ, यहाँ तो आप नहीं दे सकते टॉयलेट. अब आता असली डायग्राम जो आपको समझना है. ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का डायग्राम. अब आपको एक एक शुरू करता हूँ, एक एंड से शुरू करते हैं, फिर थ्योरी करेंगे. पहले इसको एक एंड से शुरू करते हैं. तो ब्लैक वाटर जो आपको कहा था, सीवेज वाटर जो है वो ब्लैक वाटर है. एक होता है ग्रे वाटर. ग्रे वाटर क्या होता है, जैसे वॉशिंग मशीन का पानी, नॉर्मल हॉस्पिटल के वॉशिंग मशीन का पानी तो इधर आएगा ब्लैक वाटर में, लेकिन नॉर्मल वॉशिंग मशीन का पानी इधर आएगा, डिश वॉशर का पानी इधर आएगा, आपके नहाने का बेसन, आपके बाथरूम में नहाने का एरिया, उसका पानी भी इधर आएगा ग्रे वाटर का. जो आपका टॉयलेट्स का है, यूरिनल्स का है, एनिमल स्पेसेस का है, यूरिनल्स का, हॉस्पिटल स्पेसेस का है, या जो ग्रे वाटर ब्लैक वाटर के साथ मिक्स कर दिया वो भी इधर आएगा ब्लैक वाटर में. यहाँ स्क्रीन फिल्टर है जो बड़े लम्स को अलग कर देगा, प्राइमरी चैम्बर में आ गया तो वो उसको स्क्रीन फिल्टर उसको पीस के फिर इधर डाल देगा. यहाँ से वो ओवरफ्लो करके एरेशन चैम्बर में जाएगा. एरेशन चैम्बर में क्या है, जो गैस है यहाँ वेंट दिया गया है, वो वेंट से गैसेस निकल सकती है.
एरेशन चैम्बर में इसमें एरोबिक बैक्टीरिया काम करेगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, वो उसको एयर चाहिए जिंदा होने के लिए। उसको एयर मिलते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड विल स्टार्ट टू डिकम्पोज योर सीवेज। उसके बाद से यहाँ सेटलमेंट चैम्बर में जाएगा, ये ब्लोअर से इधर भी एयर आती रहेगी, इधर भी एयर आ रही है, और मेश के थ्रू जाएगा। तो यहाँ से पीस उसके लम्स टूट गए जब डिमिस्टर से जाएगा, और अगर वो स्लज बच गया, उसको डिकम्पोज नहीं किया, बिकॉज अब डिकम्पोज हो जाएगा तो पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, तो जो बड़े पार्टिकल है वो वापस रिटर्न लाइन से पंप कर देंगे इसको वापस। यहाँ भी वेंट है, ये जब सेटलमेंट चैम्बर ओवरफ्लो करेगा वो क्लोरिनेशन एंड कलेक्शन चैम्बर में आ जाएगा। अब इसमें दो लेवल है, एक लो लेवल फ्लोट, एक हाई लेवल फ्लोट। वो अलार्म क्रिएट करेगा, लो लेवल फ्लोट भी अलार्म देगा, हाई लेवल फ्लोट भी अलार्म देगा। तो ये इधर आ जाएगा आपका, इधर ग्रे वाटर इनलेट भी आएगा। इसमें आपने क्लोरीन डाला, क्लोरीन को होल्ड करना है 60 मिनट्स के लिए। एक बार 60 मिनट्स हो गया तो दैट मीन्स डिसइंफेक्ट हो गया, फिर उसको हम ये वाल्व खोल के ओवरबोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 12 माइल से बाहर हो तो फिर तो सीधा यहाँ से ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये खोला और ओवरबोर्ड कर दिया, एज पर रेट डायरेक्टली कर दिया। अगर आप 12 माइल के अंडर हो तो फिर आपको उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। 12 माइल के बाहर तो डायरेक्ट बाहर कर दिया। हाँ, ये समझ आया कि मैं दोबारा बोलूं? सर ये हाई लेवल फ्लोट और लो लेवल फ्लोट किस चीज पे मतलब का अलार्म देगा, क्लोरीनेशन लेवल पे या फिर सीवेज लेवल पे? लेवल ऑफ कंटेंट्स इन दिस टैंक। अगर इसको हाई लेवल अलार्म है तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना, इस लाइन से निकल जाएगा, यहाँ से ओवरफ्लो करना शुरू करेगा। तो अलार्म से आपको पता लग जाएगा, ये लो लेवल अलार्म से पता लगेगा यहाँ से आ ही नहीं रहा है कुछ, इसलिए मतलब ये अटक गया कहीं। तो लो लेवल अलार्म सर इसलिए सो दैट। हाँ हाँ, क्या बोलो। सर जैसे इससे तो हाई लेवल से तो अगर ओवरफ्लो करता है और लो लेवल से हम लोग को अलार्म पता चलता है, तो हम लोग को किस चीज से पता चलेगा क्लोरीन सफिशिएंट है कि नहीं है? नहीं, क्लोरीन तो तभी डालोगे ना जब ये इससे इसके ऊपर आएगा। अगर इससे नीचे आए इसका मतलब क्लोरीन आप डाल दिया, तो इसका मतलब आपका एक इसका जो इंडिकेटर भी होता है ना, तो अगर लो लेवल अलार्म है, आपने क्लोरीन खोल दिया तो वो वेस्ट हो जाएगा ना। सो यू जस्ट विल नॉट पुट इट जब तक लेवल ऊपर नहीं आए। लो लेवल अलार्म आया इसका मतलब कुछ है ही नहीं, आपने क्लोरीन खोल दिया तो वो वेस्ट हो रहा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर? सर एक सेकंड फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरा वो फोन का मतलब वाईफाई चला गया था सर। फाइल गायब हो गया। चलो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ आपका ब्लैक वाटर इनलेट है, तो जो आपको बताया था ब्लैक वाटर क्या होता है, सीवेज वाटर, वो इधर आएगा। स्क्रीन फिल्टर है कि बहुत बड़े लम्प्स हैं उसको स्क्रीन कर देगा और वो फिर क्रश करके यहाँ भेजेगा। ये प्राइमरी चैम्बर है, गैसेस विल एस्केप, अगर यहाँ गैस ज़्यादा इकट्ठी है एस्केप। अब यहाँ से फिर लेवल से एरेशन चैम्बर में जाएगा। नेक्स्ट ये कलेक्शन चैम्बर से एरेशन चैम्बर जाएगा, यहाँ आपके ब्लोअर चलेंगे और एयर इसको दी जाएगी, सो दैट aerobic bacteria is going to activate on the sewage to decompose it. वेंट आउट हो जाएगा यहाँ से गैसेस, एंड फिर यहाँ डिमिस्टर से सेटलमेंट चैम्बर में जाएगा। सेटलमेंट चैम्बर में भी डिकम्पोज होगा फर्दर। जो लम्प्स बच गए दे विल बी सेंट बैक टू दिस लाइन, सो दैट एरेशन चैम्बर से उसको वापस डिकम्पोज करें एंड देन सेटलमेंट चैम्बर में भेजें। गैसेस यहाँ से निकलेंगी। From settlement chamber, it comes to the chlorination and collection chamber of the last chamber, the fourth chamber. In this chamber, the grey water inlet will also be opened, so that your sewage, whatever sewage has, whatever remained,
जिसमें अभी बैक्टीरिया है, क्योंकि उसको एक्टिवेट तो कर दिया बट बैक्टीरिया मरा नहीं है। तो दिस हैज ऑलरेडी बीन मे बी उसका कलर खत्म हो गया, सीवेज डिकम्पोज हो गया, लेकिन बैक्टीरिया तो हैं। ग्रे वाटर में तो बैक्टीरिया नहीं है, तो उसको तो कोई एक्टिवेशन चाहिए नहीं, तो वो उसको इसके साथ मिक्स किया। द क्लोरीन विल बी पुट इन हियर, दैट विल बी हेल्ड फॉर 1 hour. After 1 hour, the chlorine will deaden all your viruses and bacteria. So it can be sent for overboard discharge, because there will not be any color discoloration, or there will not be any lumps, and there will not be any live bacteria which is being sent to the sea. आ गया समझ? यस सर। और सर इसमें Yes, पूछ रहा था कि हाई लेवल और लो लेवल जो फिल्टर है, हम लोग क्लोरिनेशन से कैसे पता चलेगा क्लोरीन आपकी सफिशिएंट है या फिर नहीं? हमें कैसा पता लगेगा? हाई लेवल अलार्म सेंसर्स हैं, वो आपको अलार्म देंगे। जैसे आपके हाई लो लेवल बिल्ज लेवल अलार्म है, टैंक लेवल अलार्म है, तो उसी तरह यहाँ भी हाई लो लेवल अलार्म है। सर मैं उस सीवेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा क्लोरीनेशन कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने क्लोरीन हमने डाला क्लोरीन है हो वो गया कि नहीं एक्चुअल। हुआ? हाँ, जब क्लोरीन का बेसिकली क्या है, क्लोरीनेशन का टेस्टिंग पॉइंट भी हो सकता है वहाँ, जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्लोरीनेशन इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो नॉर्मली कोई टेस्ट तो करता नहीं है, अदरवाइज यू हैव टेस्टिंग पॉइंट ऑल्सो, उससे लेके आप लैब टेस्ट कर सकते हो। बट वो लैब टेस्ट तभी होगा, आप तो करोगे नहीं, या इंजीनियर करेगा नहीं, वो तो तब करेगा ना जो कोई शोर वाला आके चेक करेगा वेदर एसटीपी इज वर्किंग और नॉट करेक्टली। आप उसका सैंपल Yes. भेज सकते हो, तो वो सैंपल भेजोगे तो अप्रूवल तो बाद में आएगा ना, सामने तो आएगा नहीं। जब अप्रूवल आएगा और तभी सर आप उसको निकालोगे। तो आपका जो सर नॉर्मल जैसे है कि 60 मिनट्स में बैक्टीरिया मर जाता है नॉर्मली। यस सर। और सर मैं पूछ रहा था कि हाँ, सर थोड़ा जोर से बोलो ये यार, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। सर जैसे ये ग्रे वाटर इनलेट है सर, हाँ, तो इसमें जब ये फुल भर जाएगा तो ये हाई लेवल अलार्म वहां से तो ग्रे वाटर ओवरफ्लो करेगा नहीं, नहीं तो नहीं, हाई ग्रे लेवल वाटर अलार्म। नहीं डालोगे कि हाई लेवल के ऊपर आ जाए, ऐसा थोड़ा ना डालोगे। ग्रे वाटर चालू कर दिया कि हाई वाटर से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं है। हाई वाटर आएगा तो सर फिर फिर आप उसको हाई वाटर लाने नहीं दोगे। आपने लो वाटर आ गया, फिर आपके पास इंडिकेटर होगा जिसमें मेजर हो जाएगा कि कितना लेवल है। हाई वाटर का मतलब अलार्म हो गया कि अब ये फंक्शन ही नहीं करेगा, तो फिर आपके पास वो सिस्टम होगा जिससे आप इसको निकाल के वापस सेटलमेंट चैम्बर में डाल सकते हो। इसमें नहीं डायग्राम में बनाया, और वो सिस्टम होगा कि सेटलमेंट चैम्बर में वापस डाल सकते हो अगर यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा है तो। बट इस डायग्राम में नहीं ओके सर, बनाया। ओके सर, वो थैंक यू सर। होगा सिस्टम, इसमें डायग्राम में नहीं है। ये तो सिंपल डायग्राम बनाया ना आपको समझने के लिए, बट वो सिस्टम में होगा कि अगर यहाँ ओवरफ्लो कर गया तो कहाँ डालोगे, है ना? तो वो तो वेंट आपका तो डेक पे निकल आएगा। उसके लिए वो सिस्टम होगा, वहां से आप सेटलमेंट चैम्बर में डाल के वापस उसको एक्टिवेट कर सकते हो, वो होगा सिस्टम, बट इस डायग्राम में नहीं है। सर ये थैंक यू 12 सर। सर 12 नॉटिकल माइल जो है नियरेस्ट लैंड से है ना? हाँ, नियरेस्ट लैंड से, नियरेस्ट लैंड से। सर Thank you. डायग्राम सर में अगर अगर हमारे पास ये ट्रीटमेंट ये प्लांट हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो आप कहीं भी हाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाँ, एसटीपी अगर चल रहा है, ऑपरेशनल हो तो कहीं भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। एसटीपी ऑपरेशनल अलॉन्ग साइड भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर डायग्राम भी एग्जाम में आता है। वो वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। अगर आपके पास आए सीवेज कम्युनिटर एंड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम, वो ये है। एक सेकेंड, मैं इसका हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ। सी एन डी करता हूँ। CNT ट्रीटमेंट, ठीक, कम्युनिटर एंड डिसइंफेक्टेंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंफ्यूज नहीं होना, ये सीवेज नहीं है, ये CND ट्रीटमेंट प्लांट है, कम्युनिटर एंड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम। यहाँ लिखूंगा तो पूरा आएगा नहीं, इसलिए CND कर दिया। ये सेकेंड वाला सिस्टम अब समझो।
ये बेसिकली पीस रहा है और डिसइंफेक्ट कर रहा है, दो चीज कर रहा है, पीस रहा है एंड डिसइंफेक्ट। तो इसका मतलब लम्स नहीं आएंगे और जो केमिकल से आप बैक्टीरिया मार रहे हैं, तभी आप 12 माइल के नीचे में को डाल सकते हो। विदिन 12 nautical miles you can, but you can't use it less than 3 nautical. You have to use it more than 3 to 5 or 3 to 12. इसका जो लिमिट है 3 to 12। बियॉन्ड 12 तो आप इसको सीधा ही डंप कर सकते हो, उसको जरूरत ही नहीं। तो टॉयलेट से यहाँ आया, ये वाल्व खुल गया। अब क्या है, यहाँ परफोरेटेड बेल्ट चैम्बर है, जैसे आपका कन्वेयर बेल्ट चल रहा है ना, कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलता रहता है। कार में भी होता है कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट नहीं चलेगा तो आपके व्हील नहीं, चक्का ही गाड़ी नहीं चलेगी। आपके कन्वेयर बेल्ट आपके एयरपोर्ट में होते हैं, जिससे आपके सारा बैगेज घूम रहा होता है, तो कन्वेयर बेल्ट है ये। और इसमें होल है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर होल्स है, इसलिए उसको कहते हैं परफोरेटेड बेल्ट चैम्बर। सो दिस इज मूविंग लाइक दिस। तो जो टॉयलेट आया, सॉलिड ऊपर से निकल के इधर आ गया, और जो लिक्विड यूरिनल है वो इसमें से पेनिट्रेट करके इधर आ गया। जो होल्स हैं इसमें से निकल के यहाँ आ गया, सॉलिड कन्वेयर बेल्ट के साथ इधर आ गया। तो सॉलिड में हमने कॉस्टिक सोडा डाल दिया, तो ग्राइंड कर दिया, और ग्राइंड करने के बाद वी हैव कलेक्टेड इन द स्लज रिटेंशन टैंक। यहाँ से आपका जो यूरिनल था वो परफोरेशन से इधर आ गया, तो यहाँ हमने कॉस्टिक सोडा नहीं डाला, लिक्विड क्लोरीन डाल। उसके बाद बैक्टीरिया मरा, उसमें कॉस्टिक सोडा डाल दिया, तो उसका कलर भी वाइट हो गया। उसको फिर हमने स्लज में डाल दिया। कॉस्टिक सोडा डालने से जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक से वाइट हो जाएगा। अब ये इधर आ गया। अब इसको हम, इसका जो पानी है इसको हम फिल्टर लगा के, इसको सी वाटर के साथ, सैनिटरी पंप के साथ प्रेशर मार के वापस फ्लश में यूज कर सकते हैं इन द टॉयलेट। तो फ्लश में टॉयलेट के साथ यूज करेंगे तो फिर जो टॉयलेट के साथ आएगा फिर वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो वी कैन रीसर्कुलेट दैट वाटर फॉर टॉयलेट। अगर आपने सी वाटर से सप्लाई नहीं लिया तो आप यहाँ का पानी यूज करके सैनिटरी पंप से यूज कर सकते हैं। जो स्लज है उसको आपने बाहर निकाल दिया, और जो पानी है उसको फिल्टर करके, प्रेशर करके, सी वाटर से मिक्स करके प्रेशर टैंक से डाल के आपने फ्लश में डाल दिया, वापस से सर्कुलेट करो। और इफ इट इज मोर देन 3 nautical miles आपने इसको ओवरबोर्ड कर दिया, अदरवाइज आपने होल्ड करके रखा है। बर्थिंग किया हुआ है तो होल्ड करके रखा है। मोर देन 3 nautical miles you can pump overboard after you're working like this। हाँ, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछो। कम्युनिटर एंड डिसइंफेक्टेंट सिस्टम डायग्राम तो आपको बनाना है। इसमें क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर है? आगे करें? यस सर इसमें सर इसमें सर आप पूछो। 3 nautical के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं ना सर? ग्रेटर देन 3 nautical, इक्वल टू 3 nautical mile टू 12 nautical mile तक कर सकते। लेस देन 3 nautical mile पे एसटीपी यूज करेंगे, सीवेज STP ट्रीटमेंट प्लांट ओनली। ओके, 3 थैंक से यू। 12 के बीच में इसको यूज कर सकते हैं। 12 के बाद डायरेक्टली सी में डाल सकते हैं। 3 से कम में एसटीपी यूज करेंगे। इनफैक्ट हम एसटीपी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ओके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहीं भी यूज कर सकते हैं, अलॉन्ग साइड भी। सर ये ओवरवुड डिस्चार्ज पंप के बगल में जो वॉल था लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट ऊपर उसके, वो कौन सा था? लाइन ऊपर थोड़ी सी जगह कटी हुई है। हाँ ये है। ये बेसिकली ये वाल्व है, ये वेंटिंग के लिए, ये वेंटिंग का वाल्व होगा। और पता नहीं ये क्यों वाल्व बना है। ये इसको छोड़ दो, ये वाल्व को छोड़ दो, ये वाल्व को अपनी बनाओ, ये कहीं से कनेक्टेड होगा, इसको छोड़ दो। ये वेंटिंग के लिए तो ऊपर निकलना पड़ेगा ना, ये वेंट नहीं बनाया, इसको आप बनाओ ही नहीं। डोंट मेक दिस वाल्व। ओके ये हो सकता है सैंपल चेक करने के लिए हो, ये वाल्व इसलिए हो सैंपल चेक करने के लिए, ये भी सैंपल क्लियर है तब निकालो, ये भी हो सकता है। ये वाल्व से सैंपल देख लिया, सैंपल ठीक है तो निकाल दिया, सैंपल गड़बड़ है तो उसको होल्ड कर दिया।
माइट बी सैम्पलिंग पॉइंट, इसको मार्क नहीं किया बट माइट बी अ सैम्पलिंग पॉइंट। ओके सर। ये तो किसी इंजीनियर ने बनाया हुआ है, क्योंकि ये इंजीनियर्स को पहले बहुत पूछते थे, आजकल आप लोगों को भी पूछते हैं। इंजीनियर्स के लिए तो कॉमन डायग्राम है, बट आप लोगों के लिए और फेज 2 इंजीनियरिंग नॉलेज जो पढ़ते हैं उनको तो आता है। पहले उन लोगों को ये सब आता था, अब आजकल आप लोगों को भी ये डायग्राम आना शुरू हो गया। आजकल क्या हो रहा है कि इंजीनियरिंग के डायग्राम आपको देते हैं और आपके डायग्राम इंजीनियर्स को देते हैं बनाने के लिए। अभी आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हर जहाज में अलग अलग टाइप का है। अब आपके जो बैक्टीरिया जो काम करते हैं, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन नहीं लेता। कई बार आप देखते होंगे कि जो सीवेज की मैनहोल खोला, नीचे सफाई करने जा रहा है, काला काला पानी निकला है। देखा होगा ना, सीवेज लाइन में काला पानी होता है। काला क्यों हो जाता पता है? पानी काला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जो बैक्टीरिया काम करता है वो ऑक्सीजन के बगैर काम करता है। तो वो जब ऑक्सीजन के बगैर काम करता है तो उस बैक्टीरिया का नाम है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया पानी को काला कर देता है, डिस्कलर कर देता है। तभी हम एरोबिक बैक्टीरिया को एयर देते हैं, क्योंकि अगर हमने एयर नहीं दी तो सीवेज फिर काला हो जाएगा और उसके बाद आप पंप नहीं कर सकते। सो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है, ये भी डिकम्पोज कर देता है, बट ये काम फाउल गैसेस क्रिएट करता है, H2S, मीथेन, ये सारी क्रिएट करता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सीवेज की वो उधर में गया है, मर गया, उसने वो SCBA नहीं पहना और सीवेज की टैंकी में उतर गया किनारे पे और मर गया। 4 लोग मर गए टैंक में उतरते हुए। तो रोज आती रहती खबर। ये कोरोना से पहले रेगुलर खबर थी, अब कोरोना के टाइम सब बंद हो गया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, इट कैन ऑल्सो डिकम्पोज एंड ब्रेक डाउन स्लज, बट जब वो ब्रेक डाउन करेगा इट विल क्रिएट H2S, मीथेन, जो बहुत डेंजरस है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, बहुत लाइक रोटनेक्स की स्मेल आती है, मीथेन, ये बहुत डेंजरस है। सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ सीवेज। इसको कैसे करते हैं? हम एरेट करते हैं। एरेट मतलब ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, सो दैट एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एयर ले सके, सर्वाइव करेगा। अगर आप एयर नहीं दोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा सीवेज को और वो क्रिएट करेगा मीथेन एंड H2S, which are harmful gases, plus it will discolor the water to black, which is also not allowed. So aerobic bacteria survive on fresh air and decompose raw sewage, which can be disposed of in sea. So air is very important for functioning, इसलिए हम blowers लगा के रखा है in your sewage treatment plant. So if the air is not present, it will lead to the growth of anaerobic bacteria, which will produce toxic gases. Plus, after decomposition of sewage with anaerobic bacteria, a dark black liquid causes discoloration of water, which is not accepted for discharging. Therefore, biological sewage treatment plant should maintain a flow of fresh air. अब आपका जो प्रोसेस है, इसमें 3 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर लिखा नहीं है, पहला चैम्बर जहाँ रिसेप्शन चैम्बर है फर्स्ट वाला, उसके बाद अब एरेशन चैम्बर में जाता है। तो एरेशन चैम्बर में दिस इज फेड विद द रॉ सीवेज which has been grounded to form small particles. When you form small particles, the surface area of sewage is increased, which can be readily attacked by the bacteria, which is aerobic, and they will decompose into CO2, water and inorganic sewage. So the air is forced through this diffuser, and your pressure of air is also playing an important role in decomposition. So pressure को हम रखते हैं 0.3 से 0.4 bar. So we maintain certain pressure of
air. Settling tank जो है, mixture of liquid and sludge is passed into settling tank from aeration chamber. The sludge settles at the bottom, clear liquid will be at the top. Sludge will not be allowed to be kept inside the settling tank because अगर वो वहाँ रहेगा तो फिर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, anaerobic वाला and foul gases will be produced. तो इसको वापस रिसाइकल करके आपका एरेशन चैम्बर में वापस डाल देते हैं so that further breakdown of sewage will take place. आखिरी चैम्बर जो है it's chlorination and collection chamber. Here the clear liquid is produced from settling tank is overflown and disinfected with chlorine. Why we use chlorine? To kill the E. coli bacteria and reduce to acceptable level of chlorination. So when you want to reduce E. coli, you have to treat for minimum 60 minutes to kill your E. coli and other bacteria, harmful bacteria. So that is your sewage. देखते हैं इसका कोई वीडियो देख सकते हैं कि 5 Every ship of 400 gross tonnage and above, which is engaged in international voyages and carrying minimum 15 persons on board, must be equipped with either a sewage holding tank of appropriate capacity or an approved sewage treatment plant. The STP is fitted in the engine room of the ship, where all the black water and grey water is collected and treated before discharging it to the sea, as per MARPOL Annex 4 regulation. The biological type STP comprises of 3 main chambers. The first section is an aeration chamber, where the aerobic bacteria colony is maintained by supplying air using blowers. The sewage is inserted into the first chamber. In this compartment, the aerobic bacteria colony will decompose the raw sewage into carbon dioxide, water, and inorganic sewage. The air required to sustain the bacteria is supplied via diffusers from the blower. The decomposed sewage from the first compartment goes to the second chamber, which is used for settling purpose. Here, the sludge settles at the bottom, and clear liquid floats on the top. The bottom sludge is again sent back to the first chamber for further decomposition. The separated water is now sent to third chamber, where it is sterilized using chlorine. In the third and the last chamber, the clear liquid produced from the settling tank is overflown, and the liquid is disinfected with the help of chlorinator, to treat the final stage water for discharging overboard. The collected liquid in this chamber is discharged to overboard, or settling tank, depending on the geological position of the ship. We will have a break now, and after break we will continue with NX5.